हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में एल स्क्वायर ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। एल स्क्वायर ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज हम फाइंड करेंगे एंड आइगन स्टेट हम फाइंड करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने एल जेड ऑपरेटर के बारे में बात करी एंड ये एल जेड ऑपरेटर हमें क्या दिखाता है, ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड जो एल स्क्वायर ऑपरेटर है, ये एल स्क्वायर ऑपरेटर क्या हमें दिखाता है, ये मैग्नीट्यूड हमें बता देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, now this video is going to be actually very important because बहुत सारी चीजें हैं जिसमें स्टूडेंट्स का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन चीज कहाँ से इमर्ज हो गई एंड होपफुली you would be able to understand everything from this video। देखो, एल स्क्वायर ऑपरेटर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेराइवेशन। ओके, even though I will not do the derivation part but I'll tell you how to find it। okay, देखो, एल स्क्वायर ऑपरेटर is actually LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर। तो प्रीवियसली हमने ये डिराइव किया LX, LY एंड LZ। अगर आप इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे LX का वैल्यू, LY का वैल्यू एंड LZ का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो यू वुड बी एबल टू गेट L स्क्वायर। ओके, I'll put the derivation on the right। आप यहाँ पे ऊपर आप चेक कर सकते हैं, तो जहां पे मैंने इसकी फुल डेरिवेशन रख दी है। ओके, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दिस एल स्क्वायर ऑपरेटर, बट देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। we'll get it from Laplacian operator। okay, Laplacian operator in spherical polar coordinate system, because in angular momentum we always use spherical polar coordinate system. There are so many limitations of using the like Cartesian coordinate system, so we use spherical polar coordinate system। and अगर हम spherical polar coordinate system में Laplacian देखेंगे, this Nabla square which is given by 1 over r square। I hope you know this thing, otherwise I cannot throw it right now। okay, तो otherwise पूरा वीडियो का मकसद ही खत्म हो जाएगा। डाउ बाई डाउ r plus 1 by r square sin theta dou by dou theta sin theta dou by dou theta plus 1 over r square sin square theta dou square by dou phi square। okay, this is the Laplacian operator in spherical polar coordinates। okay, this is the Laplacian operator। एंड अगर हम इस Laplacian ऑपरेटर में देखेंगे तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसमें रेडियल पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट, ये रेडियल पार्ट है, रेडियल पार्ट बिकॉज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आर। एंड इसमें ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा एंगुलर पार्ट है। एंगुलर पार्ट मतलब इट टॉक्स अबाउट द थीटा एंड फाई। सो बेसिकली ये जो Laplacian का एंगुलर पार्ट होता है, दिस इज समहाउ कनेक्टेड टू एल स्क्वायर। अगर हम इस Laplacian ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम if we multiply it, okay, if we multiply it by minus h cut square r square, okay, इस पार्ट को, इस स्फेरिकल आई मीन लाइक एंगुलर पार्ट को, इस पार्ट को अगर हम मल्टीपल करेंगे माइनस एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर से, then you will see this r square will cancel this part and there will be in addition minus h cut square। okay, so that would be the L square operator। okay, that means L square is given by minus h cut square, this r square now gets cancelled, तो अंदर क्या बचेगा, 1 over sin theta dou by dou theta sin theta dou by dou theta plus 1 over sin square theta dou square by dou phi square। okay, so this is actually the L square operator। this is actually the L square operator। there is another way of doing this in some like PDFs or in some books you can see that we can compare this Laplacian operator, this whole Laplacian operator with 1 over r square dou by dou r square dou by dou r। okay, and minus if we compare it with the L square by h cut square r square, तो ये जो पार्ट ऊपर रहेगा, तो if we compare this whole part with this term, okay, this term,
then we'll get L square. Okay, that is actually the same thing. That's different way of saying the same thing. But finally आपको L square ये याद रखना है. This is the L square operator in the spherical polar coordinates. And I told you there is another way of doing this. There is another way of deriving this from here. So मैंने आपको वो ऊपर रख दिया है, तो I hopefully आपने वो चेक किया होगा. Now हमें इसी L square operator जो है हमारे पास, इसी L square operator का हमें क्या निकालना है? हमें इसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स निकालने हैं. नाउ अगर आप देखोगे ये जो L square operator है, इट कंटेन्स एंगुलर डेरिवेटिव्स. एंगुलर डेरिवेटिव्स मतलब इसमें क्या है? इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई है. So since there is no radial derivative, that means there is no differentiation with respect to r. That is why L square describes only rotation and angular motion. Okay, that is why it represents rotation and angular motion. Because इसमें कौन से डेरिवेटिव्स है? बिकॉज इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई है. ओके, अगर ये कंटेन करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, जो इसका आइगन फंक्शन होगा दैट शुड आल्सो बी द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई ओनली. दैट शुड नॉट कंटेन आर इन इट. ओके, सो जो हम आइगन फंक्शन इसका है साई थीटा फाई, सो दैट शुड कंटेन ओनली थीटा एंड फाई. सो शुड बी द इज आइगन फंक्शन. मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, आइगन फंक्शन ऑफ L स्क्वायर. एंड आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, जो थीटा एंड फाई है ये इंडिपेंडेंट है. थीटा एंड फाई क्या है आपस में? ये थीटा एंड फाई इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इफ आई चेंज थीटा दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली चेंज फाई. ओके, एंड वाइस वर्सा. लाइक इफ आई चेंज फाई दैट डज नॉट चेंज थीटा. और लाइक थीटा ये जो डिफाइन करता है वो अप एंड डाउन की डायरेक्शन दिखाता है, बिकॉज थीटा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, मैं थोड़ा उसमें नहीं घुसना चाहता हूँ, बट थोड़ा आइडिया दूंगा. तो ये एक्चुअली में क्या होता है? ये आर वेक्टर है, तो ये वाला थीटा है. सो अप एंड डाउन डायरेक्शन में, एंड ये इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पे आर साइन थीटा है, उस वो जो एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस दैट इज फाई. सो ये जो फाई है ये अराउंड जेड एक्सिस के घूमता है, एंड जो थीटा है वो अप एंड डाउन. दैट मीन्स दे आर टोटली इंडिपेंडेंट. दैट सिंपली मीन्स इफ वी चेंज changing like theta, that does not automatically change phi. So that is what I mean by they are independent. And अगर वो independent है तो they mathematically we can do one thing. So we can do one thing. This psi of theta and phi can be written as some theta of theta and phi of phi. Okay, मतलब there is some function of theta and this is some function of phi. In some books you can write it like this: f of theta and some g of phi. Two functions. Okay, but for simplicity मैं ये लिख रहा हूँ. This is some function of theta and this is some function of phi. And अगर L square operator इस psi theta पे apply या ऑपरेट करेगा तो दैट शुड गिव सम मेजरमेंट, दैट इज आइगन वैल्यू. ओके, साई थीटा फाई. अगर ये इसकी आइगन स्टेट होगी, साई किसकी? एल स्क्वायर की, तो दिस शुड बी द मेजरमेंट. मेजरमेंट मतलब आइगन वैल्यू, एंड ये इसकी आइगन स्टेट रहेगी फिर. ओके, नाउ since we got L square, now we'll try to find what is this psi. What is this psi and what is this theta, this theta part, and what is this phi part. Okay, very interesting. There is associated legendary polynomial, associated legendary differential equation. Then you will see there are spherical harmonics involved. There are so many great things in it, and you love how we get the solutions and how beautifully they have been created. Okay, now let's proceed and let us see how we would be able to find the eigenstate and eigen value. Okay, so see, अगर हम यहाँ पे ये L स्क्वायर ऑपरेट अब करेंगे किस पे? साई पे. तो डायरेक्टली हम ऑपरेट करेंगे, तो मैं इसको ऑपरेट कराते देता हूँ.
तो मैं इसको उठा दूं बिकॉज मैं थोड़ा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहूँगा पूरा लिखने पे, तो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ये। तो अब मुझे इसी को ऑपरेट करना है, किस पे ऑपरेट करना है, मुझे अब इसको ऑपरेट कराना होगा किस पे, साई पे। ओके सॉरी, मुझे अब इसको ऑपरेट कराना होगा साई पे। तो अगर हाँ ठीक है, तो अब इसको हम ऑपरेट कराएंगे साई पे, मतलब साई ऑफ थीटा एंड फाई शुड गिव अस लैम्डा साई थीटा फाई। ओके, अगर मैं इसको ऑपरेट कराऊंगा एल स्क्वायर को, ये अब पूरा क्या बन गया, ये अब पूरा क्या है, ये है एल स्क्वायर अगर ऑपरेट करेगा साई पे, ये तो ऊपर लिखा है, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, एल स्क्वायर को ऑपरेट किया साई थीटा फाई पे, तो उसने दे दिया लैम्डा साई थीटा फाई। ओके, आई होप दिस इज लाइक ओके विथ यू। नाउ अब मैं रिप्लेस करूंगा इस साई थीटा फाई को थीटा ऑफ थीटा एंड फाई ऑफ फाई। ओके, नाउ यू नो वी कैन डू दैट। ओके, सो अगेन इसको मैं कॉपी करूंगा एंड इसको यहां पे पेस्ट। नाउ द चेंज विच आई विल डू, यहां पे इस साई को रिप्लेस करूंगा किससे, इसको मैं रिप्लेस करूंगा थीटा ऑफ थीटा एंड फाई ऑफ फाई। ओके, फाई ऑफ फाई वो क्या देगा मुझे, थीटा ऑफ थीटा एंड फाई ऑफ फाई। These are simply functions. This is function of theta, this is function of phi. I hope you understand it. Now I will divide by theta phi on both sides. Okay, उससे क्या होगा, ये जो राइट साइड में थीटा फाई है ये खत्म हो जाएगा, वहां पे हमें बचेगा लैम्डा। ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को चलो एक बारी लिख देते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो व्हाट इट विल गिव अस माइनस एच कट स्क्वायर एंड यहां से 1 ओवर, देखो अगर ये थीटा एंड फाई है, ये यहाँ पे ये डाउ बाई डाउ थीटा इस पे ऑपरेट करेगा, तो सिंस ये फंक्शन ऑफ थीटा है तो इसमें फाई कांस्टेंट रहेगा, तो ये फाई यहाँ पे बाहर आएगा। ओके, तो पहले मैं इसको ये फाई लिखूंगा, यहाँ पे साइन थीटा एंड डाउ बाई डाउ थीटा ऑफ साइन थीटा, डाउ बाई डाउ थीटा ऑफ थीटा। अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ओके, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करूंगा एंड देन सॉरी एंड प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए ये फंक्शन ऑफ फाई है तो ये फाई पे ऑपरेट करेगा, तो थीटा इसका कांस्टेंट रहेगा, तो थीटा वुड बी आउटसाइड, डाउ स्क्वायर बाय डाउ फाई स्क्वायर एंड फाई। ओके, सो इक्वल्स लैम्डा थीटा फाई। अभी मैंने डिवाइड नहीं किया। ओके, नाउ आई विल डिवाइड ऑन बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, एंड मैं एक और चीज करूंगा, ये जो माइनस एच कट स्क्वायर है इसको राइट साइड में लूंगा यहाँ पे एंड साइमल्टेनियसली डिवाइड करूंगा थीटा एंड फाई से। उससे क्या हो जाएगा, यू विल सी what a beautiful result would be. So it will give us like this 1 over, देखो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये फाई खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 over थीटा साइन थीटा। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड अंदर डाउ बाई डाउ थीटा ऑफ साइन थीटा, डाउ थीटा बाई डाउ थीटा। ओके, प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसमें थीटा था ऊपर, तो अब फाई बचेगा, तो नीचे क्या रहेगा, एक फाई रहेगा। ओके, एंड डाउ स्क्वायर बाय डाउ फाई स्क्वायर, यहाँ पे फाई इक्वल्स, अब मैंने माइनस एच कट स्क्वायर को राइट में लिया, तो ये माइनस लैम्डा बाय एच कट स्क्वायर। इज दैट ओके? I hope you got it. Okay, now there is another thing. Now if you see this equation, here is some extra theta, function of theta. This is the only function of theta there, otherwise the whole thing is phi. This is phi, this is phi, this is phi. Now this sin square, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम will multiply it by
साइन स्क्वायर थीटा। तो ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो अब वहां पे क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स हम मल्टीपल कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से। ओके, सो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, एंड वो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, तो ये यहां पे ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड इसमें एक साइन थीटा खत्म हो जाएगा एंड दूसरा बचेगा, तो ऊपर रहेगा एक साइन थीटा। ओके, इज दैट ओके? I think it's very good. Okay, so let's move it here. Now you see one thing. This whole is a function of phi only. Okay. Now हम क्या करेंगे? ये जो पार्ट है इसको इस साइड में लेंगे, एंड ये जो पार्ट है इसको राइट साइड में लेंगे। नाउ व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग दैट? मैं चाह रहा हूं कि मैं फाई पार्ट को अलग से ले लूं एंड थीटा पार्ट को अलग से ले लूं, ठीक है? बिकॉज अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले रहा हूं, इस पूरे पार्ट को, तो लेफ्ट साइड वुड बी द फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, एंड राइट साइड वुड बी द फंक्शन ऑफ फाई ओनली। आई होप यू गॉट इट। ओके, नाउ तो now I'll take it. So sin theta मैं copy करना चाहूँगा, that would save us some certain time. तो this side copy, यहाँ पे paste, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, and ये वाला पार्ट पूरा ओके कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, बट प्लस, बिकॉज ये इस साइड में प्लस बनेगा। ओके, इक्वल्स, एंड ये वाला पार्ट नेगेटिव बन जाएगा राइट साइड में, तो इस वाले पार्ट को हटा के इसको कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट कर देते हैं, एंड ये लेकिन नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अब मैं इस माइनस को वहां पे नहीं रखना चाहूंगा, मैं इस माइनस को पूरा इधर लेना चाहूंगा, एंड यहां पे एक माइनस साइन रखूंगा। नाउ यू गॉट इट। नाउ लेफ्ट साइड इज फंक्शन ऑफ, नाउ LHS is function of theta only, and rather than function of theta only, sorry, and right is function of phi only. अगर ऐसा है फिजिक्स में कि like you know left side is function of theta, right side is function of phi, and वो both and they are both equal, then there is only one thing, that they must be equal to the same constant. Okay, that means they must be some constant both. Then there is a possibility. Otherwise, function of theta and function of phi would not be equal. So then we'll do one thing. Then this 1 over phi dou square phi by dou phi square should be equal to some constant, and let me write that minus m square constant. Okay, now since we are dealing with only one variable, there is no there is no need to write in the partial derivative. We can directly write it as a complete derivative. 1 over phi d square phi by d phi square equals minus m square. Okay, now let me take it to the right, multiply phi on the both sides, and taking this part to the left, so it will become a differential equation, d square phi by d phi square plus m square phi equals 0. Now this is the second order differential equation, and we know its solution. Okay, and we know it is solution. बहुत जगह क्वांटम मैकेनिक्स में हमने इसको देखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन ऐसे होता है, जो फाई होता है वो होता है e to the power iota m phi. अगर बीच में माइनस होता then solution would have been different. Okay, तब ऊपर माइनस आ जाता है. So this is the solution. Now we are able to find phi, that function. This is actually the function of f of मैंने g लिखा था, g of phi. Okay, now that means जो psi में दो चीजें थी, एक तो theta of theta था and phi of phi था, तो we are able to find this solution. Now हमें इस theta को find करना है किसी तरीके से. Okay, वो हम कैसे करेंगे? Now वो हम करेंगे यहां से, जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, जो इसका ये वाला पार्ट है, now it should be equal to the same constant. Okay, now I will take this and put it here and put it here. तो now ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? नाउ ये वाला पार्ट मैं इसको हटा देता हूं, delete. Okay, now it should be equal to the same constant. Okay, and then it should be equal to the minus m square. Okay, same constant. तो ये माइनस एंड ये माइनस खत्म हो जाएगा एंड वहां पे बचेगा क्या? वहां पे बचेगा सेम थिंग, बट या I'll do one thing. I will divide by sin square theta so that ये वाला यहां से खत्म हो जाएगा, ये sin square theta खत्म हो जाएगा on the both sides. Okay, and multiply by the theta on the both sides. Okay, let me see. What I'll do, I will divided by sin square theta on both sides and multiply theta on both sides. Okay, देखते हैं उससे क्या हो जाएगा. सो साइन स्क्वायर थीटा जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे एक बचेगा साइन स्क्वायर थीटा में से एक बचेगा 1 साइन थीटा. अब मैं मल्टीपल कर रहा हूँ थीटा तो ये खत्म हो जाएगा, डाउ बाई डाउ थीटा एंड देयर इज नो चेंज, साइन थीटा डाउ बाई डाउ थीटा ऑफ थीटा. तो ये वाला पार्ट पहला है, प्लस लेमडा बाई एच कट स्क्वायर एंड थीटा, बिकॉज मैं मल्टीपल कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, इक्वल्स माइनस एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा. नाउ मैं इसको इस साइड लूंगा, लेफ्ट साइड, तो इट विल बिकम 1 साइन ऑफ थीटा डाउ बाई डाउ थीटा साइन थीटा डाउ बाई डाउ थीटा ऑफ थीटा प्लस लेमडा बाई एच कट स्क्वायर थीटा. ये माइनस खत्म हुआ था, सॉरी, तो अब ये माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा. ओके, बिकॉज ये माइनस एंड ये माइनस मैंने खत्म करा था, तो ये बिकॉज मुझे इक्वेशन याद आ गई, वहाँ पे माइनस होना चाहिए. तो मैं जब ये प्लस यहाँ पे रहेगा तो ये यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा. तो वो थीटा मैं बाहर लूंगा यहाँ से एंड यहाँ से. ओके, equal is 0. Now this is the famous equation. We are able to write this equation. Why it's not taking? Okay, now this is the equation. Now ये equation देखो, किसी जगह पे क्या लिखा होता है किसी बुक में, तो वो ऐसे करेंगे, वो यहाँ पे जो थीटा होता है इसको f of theta लिखेंगे. ठीक है, जैसे मैंने बोला, तो and this would be the f of theta. Okay, now some books say that this is the this is the associated legendary differential equation. Okay, but I will do one thing. I will follow a different pattern while we make first substitution. Okay, we will substitute. We'll substitute cos theta equals x. Okay, that means x equals cos of theta. Okay, इस x equals cos of theta को substitute करने से हमें क्या होगा, देखो, dx by d theta equals minus sin theta. Okay, which implies minus dx equals sin theta d theta. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 sin theta d by d theta equals minus d by dx. ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं. नाउ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर है, ये 1 साइन थीटा डी बाई डी थीटा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स से. एंड उसी तरीके से अब बाद में हमें साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी तो रिप्लेस करना है एक्स से. तो सिंस यहाँ पे एक्स इक्वल्स कॉस थीटा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, तो मैं ऐड करूंगा साइन स्क्वायर थीटा ऑन द बोथ साइड्स, दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स since cos square theta plus sin square theta is 1, which implies sin square theta equals 1 minus x square. तो ये आपके लिए होमवर्क है. तो मैंने दोनों चीजें एंड बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, एंड दैट इक्वेशन वर्ड चेंज इनटू, अगर मैं पहले आप ट्राई करो होमवर्क, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ एज ए प्रूफ इसका. जब हम इसमें बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इक्वेशन विल टर्न इनटू दिस 1 minus x square d square by dx square. Now since this is a function of
x ओनली, सो मैं यहाँ पे f ऑफ x लिखूंगा, ओके, माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस लैम्डा बाई h कट स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर. इट्स अ वेरी 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 इजी डेरिवेशन. तो आई बिलीव दैट यू वुड बी एबल टू डू इट. अगर नहीं करा तो ऊपर मैंने वो रख दिया था, तो वो वहां से आप चेक कर सकते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू दिस. Okay, now this is the equation. Now this is actually associated Legendre differential equation. And इसका solution क्या होता है? Associated Legendre polynomial. इसका solution क्या होता है? Associated Legendre polynomials. उसको कैसे represent करते हैं? ऐसे. Okay, ऐसे. This is the associated Legendre polynomial. Okay, now इसके बहुत सारे solutions है lambda के. Okay, mathematical solutions exist for like many lambdas, but ये वो जो solutions बन जाते हैं, जो भी solutions है lambda के, वो infinite at x is equal to plus minus 1 बन जाए. देखो, अगर ये x equals plus minus 1 बन जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी ये खत्म हो जाएगा. That is why most solutions becomes infinite at x equals plus minus 1. Okay, that means that those are non-physical solutions. Those are what? Non-physical solutions. अगर वो non-physical solutions है, that means they are they are non-normalizable. So because अगर आप देखोगे, जो हमने x equals cos of theta किया था, अगर हम theta equals 0 देखेंगे and theta equals pi देखेंगे, तो x का क्या solution है? plus minus 1. Okay, so यहाँ से that means these are the poles. एंड अगर हमें a physical wave function cannot blow up there. अगर कोई physical wave function है तो x equal to plus minus 1 पे blow up नहीं करनी चाहिए. लेकिन ये क्या बन रहे हैं? ये infinite बन रहा है x equal to plus minus 1 पे. So अगर हमें इसका जो finite polynomial solutions है, इसके इस associated Legendre differential equation की अगर हमें finite solutions देखने हैं, तो उसके लिए कंडीशन होती है. उसके लिए ये जो lambda by h कट स्क्वायर होता है, this lambda by h cut square should be equal to lambda by h cut square should be equal to L into L plus 1. Okay, this is the famous condition. For finite polynomial solutions. Okay, and L equals 0 1 2 3. Okay, and then the solutions, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, this equation or in this equation, then the solution becomes the associated Legendre polynomials. तब जाके ये solution बन जाएगा PLM cos of theta और PLM of sinus. अब now there is only x, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PLM of x. Okay, cos of theta लिखने की जरूरत नहीं है, because now there is a function of x only. तो अगर आप PLM of cos of theta, तो वो इसका solution आ जाएगा. Now this is the very famous condition. This is the very very important. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तब जाके इस एसोसिएटेड लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन बन जाएगा, वो एसोसिएटेड लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स, व्हिच इज PLM ऑफ x. ओके, एंड नाउ तो हमने देखा कि लेकिन हाँ, since our actual differential equation was in terms of theta, and our total wave function is function of theta and phi का तो हमने देख लिया था. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे जो psi of theta and phi था, उसमें theta of theta था and phi of phi था. तो ये वाला पार्ट हमने डिराइव किया था. phi of phi क्या था? e to the power iota m phi. एंड बाद में हमने देखा ये जो थीटा ऑफ थीटा है, मतलब इसका सोल्यूशन वो क्या है? एसोसिएटेड, इसका जो थीटा ऑफ थीटा का सोल्यूशन है वो क्या है? PLM cos of theta. ओके, PLM of cos of theta. नाउ जो psi ऑफ थीटा है एंड phi होगा, वो होगा PLM cos of theta and e to the power iota m phi. Now this is the final solution. अगर इसको हम नॉर्मलाइज करना चाहोगे, तो this is normalization constant. So ये जो psi अब हमारा बन गया,
ये जो साई अब हमारा बन गया, इन तीनों को मिला के नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल एंड ई टू द पावर आयोटा एम फाई, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं। दैट मीन्स वाई एल एम इक्वल्स एन पी एल एम cos of theta e to the power iota m phi. Now this is the spherical harmonics. This YLM is the spherical harmonics. And अगर L square ऑपरेट करेगा YLM पे, वो क्या देगा? Because हमारा तो lambda था, तो because हमने पहले ही देखा कि अगर L square ऑपरेट करेगा यहाँ पे साई थीटा फाइव है, वो हमारा lambda देगा, तो we were able to get that lambda by using that condition. Okay, ये condition यहां से हम लेमडा निकाल सकते हैं, तो वो लेमडा क्या आएगा? एच स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन वाई एल एम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाई एल एम हमारे पास क्या है? दिस इज आइगन स्टेट एंड दिस एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन, ये क्या है हमारे पास? आइगन वैल्यू। ये एक साथ है, आइगन वैल्यू और लैम्डा। ओके, मैं यहां पे वीडियो रोकना चाह रहा हूं बिकॉज इसका मेमोरी में कुछ गड़बड़ है, तो मैं इसको यहां पे स्टॉप करूंगा। फिर हाँ ठीक है, वेलकम बैक। हम कहाँ पे थे? तो ये जो अब थोड़ी मैं ऑर्डिनरी, पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है? जो ऑर्डिनरी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए कनेक्शन, जो ऑर्डिनरी लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स है जो ऐसे रहते हैं, P0x इक्वल्स 1, P1 ऑफ x इक्वल्स x, P2 ऑफ x इक्वल्स 1/2, 3x square minus 1. These are ordinary legendary polynomials. And जो हमारे associated legendary polynomials होते हैं वो इनके साथ connected रहते हैं। अब हम लिखेंगे associated legendary polynomials। वो कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं, PLM of x equals -1 to the power m, 1 minus x square to the power m/2 PL of x। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी है, सॉरी, d by dx m times PL of x। So this is associated legendary polynomial। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है? ये legendary polynomial है, not associated one। अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे, m is equal to 1, L is equal to 1 पे देखते हैं, देखो हमारे एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ठीक है? m equals 1, L is equal to 1, so P1 1 equals -1 to the power 1, 1 minus x square 1/2 d, because only m is 1, so only one is differentiation, and P1 of x, P1 of x क्या है हमारा? x, तो यहाँ पे x है, तो ये 1 बन जाएगा, so P1 of equals minus times 1 minus x square root। ओके, दिस इज द एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल। उसी तरीके से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल। कहां से निकाल सकते हैं? ऑर्डिनरी लेजेंडरी पॉलिनोमियल से। एंड फाइनली हमारा जो सोल्यूशन बन जाता है वो हमारा क्या बन जाता है? स्फेरिकल हार्मोनिक्स बन जाता है। जैसे y00 इज इक्वल टू 1/√4π, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। एंड अगर हम y10 देखेंगे, सो 3/4π cos ऑफ थीटा, y1 plus 1 equals minus times 3/8π sin theta e to the power plus iota phi, and y1 minus 1 equals plus root of 3/8π sin of theta e power minus iota phi। ओके, नाउ बिकॉज अब बोलोगे ये 0 + 1 -1 क्या है? एक्चुअली जो m का वैल्यू होता है वो -l टू +l थ्रू 0 होता है। जैसे हमारा l इक्वल्स 1 है, तो m के कितने वैल्यू आ जाएंगे? -1 0 + 1। m इक्वल्स 2 पे अगर हम देखेंगे, तो जो अगर हमारा l इक्वल्स, तो जैसे हमारा l इक्वल्स 2 है,
जैसे हमारा L इक्वल्स 2 है तो M के क्या बन जाएंगे, -2, -1, 0, +1, +2। ओके, नाउ हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या बना था, हमारा फाइनल सोल्यूशन बना था स्फेरिकल हार्मोनिक्स YLM, वो किसके बराबर था, N एंड PLM cos ऑफ थीटा, ये क्या था, एसोसिएट लेजेंडरी पॉलिनोमियल एंड e⁻i m phi। एंड एसोसिएट लेजेंडरी पॉलिनोमियल किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ऑर्डिनरी लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो फाइनली हमारा इसको समटाइम्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं LM से। ओके, मतलब अगर L स्क्वायर ऑपरेट करेगा LM पे तो वो लैम्डा देगा, लैम्डा क्या है, L into L plus 1 H cut square LM। So this was all about the L square operator. I hope you understand it.